हेलो स्टूडेंट्स। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। अभी तक हम लोगों ने बोर्स मॉडल कर लिया था, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस हम करते हैं। क्या लिमिटेशंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा फॉर द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन. This model only explained about hydrogen, but if we talk about the rest of or hydrogen like particles, like the atoms which are having only one electron, and but if we talk about other atoms, this model was not enough to explain all the properties, that means the spectra of those molecules. Next, it was unable to explain splitting spectral lines in the presence of magnetic field. That means if we are taking the line spectra of hydrogen and that spectra comes into contact of magnetic field or electric field, what happens, that spectra splits. Like this is the line spectra of hydrogen, and if it is in contact with magnetic field or electric field, it splits into another lines. Okay, suppose this is magnetic field, then it splits into another line. But when the spectral line splits in the presence of magnetic field, this is called Zeeman effect. Or if it splits in the presence of electric field, it is called Stark effect. Okay, next is it could not explain the ability of atoms to form molecules by chemical bonding. जो केमिकल बॉन्डिंग हमें पढ़ने, क्यों किन्हीं एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्डिंग होती है, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसके बारे में बोर्ड ने अपने मॉडल में नहीं बताया था. तो इसके लिए कुछ और डिस्कवरीज हुई और कुछ और नए नए जो कह सकते इक्वेशंस आई, और उनके बेसिस पे जो बॉन्डिंग है एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो डिराइव हुई. तो उसमें जैसे सबसे पहले आता है डी ब्रोगले रिलेशनशिप. एक्चुअली इसने डी ब्रोगली ने दो इक्वेशंस यूज की थी. फर्स्ट वन वाज E equal to h nu given by Planck, and second one was E equal to mc square given by Einstein. Okay, mc square where m is mass of electron and c या photon जिसका भी हमें एनर्जी कैलकुलेट करना है, and c is its speed of light. c is speed of light. तो अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग these equations, E equal to h nu है, E equal to mc square है, so h nu will be equal to mc square and h nu will be equal to m into c square means this. Okay, and what is mass into velocity? It is mass into velocity. M into c is momentum, linear momentum, and linear momentum is denoted by p. Linear momentum is denoted by p. So it is h nu is equal to, this is p into c. And now the next is, what is the relation between nu and lambda? Nu is equal to c by lambda. Okay, frequency is equal to speed up, or you can say speed of light upon wavelength. So it comes out to be h multiplied by c by lambda is equal to p into c. यहाँ c से c cancel, then after it comes out to be lambda उस साइड चला जाए और p इस साइड, so lambda will be equal to h upon p. Okay, where h is Planck's constant and p is momentum. Okay, तो अभी यहाँ पे तुम्हें देखो मोमेंटम मीन्स, और यू कैन राइट इट एज एच इंटू एम वी या एम सी. ओके, वेलोसिटी और सी इज द स्पीड ऑफ लाइट. तो हम यहाँ पे जो मोमेंटम है उसको मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं. दैट विल बी इक्वल टू लेमडा, दैट इज वेवलेंथ. लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. यहाँ एक और बात ध्यान देने की है कि जो वेवलेंथ होगी
वो देखो अभी तक हम वेवलेंथ के बारे में पढ़ रहे थे कि वो वेव प्रॉपर्टी, वेव की प्रॉपर्टी, और वेव की प्रॉपर्टी में हम मास को यूज़ नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्या है कि किसी वेव का अगर उस किस पार्टिकल से वो वेव प्रोड्यूस हो रही है, अगर उस पार्टिकल का हमारे पास मास है, उसकी वेलोसिटी है, तो हम उस वेव का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एट्सेट्रा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको बोलते हैं डी ब्रोगली रिलेशनशिप, इसी को बोलते हैं डी ब्रोगली रिलेशनशिप। ये डी ब्रोगली साइंटिस्ट था, उसने ये रिलेशनशिप दिया था। ओके, दिस वन। सो इट इज शोइंग ड्यूअल बिहेवियर। मैं फिर से बोल रहा हूँ ड्यूअल बिहेवियर क्यों? क्योंकि अगर मास आ गया दैट मीन्स पार्टिकल नेचर इज देयर, एंड लैम्डा मीन्स वेवलेंथ इज देयर, दैट मीन्स वेव नेचर इज देयर in this relationship. So it's showing dual behavior of matter, that is it is having wave nature as well as particle nature. इसके बाद इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम देख लेते हैं, जैसे कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब देखो बॉल की बात आ गई, दैट मीन्स इट्स अ मैक्रोमोली। देखो माइक्रो मोलिक्यूल्स कौन से होते हैं या माइक्रो मैटर कौन से होते हैं? जो बहुत छोटे मटेरियल्स होते हैं, जैसे एटम्स मॉलिक्यूल्स या उनसे बने हुए, मतलब जिनकी जो रेडियस होती है वो नैनोमीटर्स में होती है, जिनका मास भी माइक्रोग्राम नैनोग्राम में होता है। लेकिन यहाँ पे तो एक क्रिकेट बॉल की बात कर सकते हैं हम, 0.1 kg है, मतलब 100 ग्राम की वो बॉल है, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या उसका जो वेवलेंथ होगी, तो उसकी वेवलेंथ देखते हैं। देखो जितना बड़ा जो मॉलिक्यूल होता है उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम आती है। तो देखते हैं इसमें कितनी वेवलेंथ आती है। वेवलेंथ इक्वल टू h अपॉन एम वी, दिस इज h, एंड एम वी इज मास इज 0.1 kg एंड वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इनको अगर तुम इनकी यूनिट भी लिख लिया करो साथ साथ, ताकि यूनिट भी याद हो जाए। दिस इज जूल सेकेंड, दिस वन इज kg, एंड दिस इज मीटर पर सेकेंड। ओके, सो इसमें जो ओवरऑल हमारे पास आएगा इनकी कैलकुलेशन वो आ जाएगी 6.626 इंटू 10⁻34 मीटर। ओके, तो देखो इतनी कम वेवलेंथ की, ये 10⁻34 में जा रही है बात, ये जो वेवलेंथ होगी इससे एसोसिएटेड, किससे एसोसिएटेड है? इस पर्टिकुलर बॉल से। नेक्स्ट, the mass of an electron is 9.1 into 10⁻31 kg if the kinetic energy is, देखो ये माइक्रो पार्टिकल और माइक्रो पार्टिकल की वेवलेंथ तुम्हें एक अच्छा नंबर मिलेगा उसके लिए, ठीक है। मतलब 10⁻34 की बजाय 10⁻10, 10⁻5 इसमें रहेगी। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस एंड द काइनेटिक एनर्जी इज, देखो अब यहाँ पे कैलकुलेट वेवलेंथ, अब हमें वेवलेंथ निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है, अगर काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है तो वहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी निकाल लेंगे, और वेलोसिटी से वेवलेंथ आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास m है, v यहाँ से आ जाएगा। देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। सो यहाँ से v की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी के डिवाइड में मास चला जाएगा, ओके, और स्क्वायर का इस साइड में स्क्वायर रूट हो जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m रेज़ टू पावर हाफ, दैट मीन्स इट्स स्क्वायर रूट। वैल्यूज़ रख देते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो है 3 इंटू 10⁻25, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, देन आफ्टर 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये है इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है यहाँ पे। तो इनको यूज़ करके हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? इसकी वेलोसिटी 812 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन आफ्टर जो लेमडा होगा, अच्छा ये जो कैलकुलेशन है ये 10⁻25 10⁻31 है, इनको थोड़ा सा कैलकुलेट खुद करके देखना। अगर कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछ लेना, क्योंकि इसमें बड़ी मिस्टेक्स होती है। अभी तुम लोग शुरुआत में ही हो जो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर रहे हो। ये 10⁻34 -31 इन सबको बहुत ईजी है वैसे ये कैलकुलेशंस। देन आफ्टर लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। ओके, मास आ गया हमारे पास, वेलोसिटी आ गई, तो इनको पुट करके इनकी वैल्यूज़ हमने क्या निकाल लिया? इसका जो वेवलेंथ है वो इतने मीटर में आ गई या फिर इतने नैनोमीटर में, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर होता है। देन आफ्टर कैलकुलेट द मास ऑफ अ फोटोन विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। देखो
फोटोन जो होती है लाइट का पार्ट होता है, और अभी तक हम सोच के चल रहे थे क्या उसका कोई मास होता है या नहीं होता, लेकिन अभी आएगा कि उस फोटोन से भी कुछ मास एसोसिएटेड है। दैट इज लेमडा इज इक्वल टू 3.6 एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम का मतलब होता है 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रोम होते हैं। एंगस्ट्रोम इज द यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, सो 1 एंगस्ट्रोम इक्वल टू 10⁻10 मीटर, 3.6 इंटू 10⁻10 मीटर। देन आफ्टर वेलोसिटी हमारे पास होगी, देखो इस फॉर्मूला में हमारे पास क्या है, या ये फॉर्मूला देखे लैम्डा इक्वल टू h/mv, तो इसमें हमारे पास वेवलेंथ है, h की वैल्यू हमें पता ही होती है, और क्या गिवन है, वेलोसिटी हम स्पीड ऑफ लाइट लेके चलेंगे, जो लाइट है फोटोन है ना, स्पीड ऑफ लाइट लेके चलेंगे, तो मास कैलकुलेट करना है, तो मास कैलकुलेट करेंगे m इज इक्वल टू h/, रीअरेंज कर लेंगे इस इक्वेशन को, लैम्डा v, इनकी सबकी वैल्यूज पुट कर दी, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और उससे आ जाएगा हमारे पास मास। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।